السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے کائنات کا رب اور پروردگار ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عربی زبان کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ عربی زبان لینگویج آف قرآن ہے، لینگویج آف حدیث ہے، اور موجودہ زمانے میں بھی عربی زبان ہماری اپنی ضروریات کے لیے ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اور الٹیمیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ احب العربیہ، کہ عربی زبان کو پسند کرو، لأنی عربی، کہ میں عرب ہوں، والقرآن عربی، قرآن مجید عربی میں ہے، ولغت اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ دنیا کے اندر ہم بغیر زبان سیکھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے ہم اپنی مادری زبان کے علاوہ اور بھی زبان سیکھتے ہیں، اور کیا ہی خوش نصیبی ہوگی ہماری کہ ہمارا تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی انرجی، تھوڑا سا ہارڈ ورک اگر اس زبان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اپنے بلیسنگ اور اپنے فیور سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور دین کا سورس ہے قرآن مجید، دین کا سورس ہے عربی زبان، دین کا سورس ہے احادیث مبارکہ، اور اس کی ہے لینگویج۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ایز اے مشن ہم امت مسلمہ کو قرآن سے قریب کریں، حدیث سے قریب کریں۔ اور بندے کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ پچھلے 15 سال سے پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس زبان کو پڑھنے، پڑھانے، اس زبان کو سیکھنے، سکھانے، اور اس زبان کو قرآن کی زبان کے اعتبار سے، حدیث کی زبان کے اعتبار سے، اور ہماری کمیونیکیشن کی لینگویج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں پوسٹ کورونا جو تعلیمی میدان میں تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر آن لائن کلاسز کے الحمدللہ بہت بہترین تجربے ہوئے ہیں، اور جس کے اندر 2 کورسز پوری کامیابی کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہو رہے ہیں کہ 1.5 سال میں عربی زبان کو سیکھا اور سکھایا گیا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا بھی ماشاءاللہ کورس شروع ہوا، اور جو اپنے پورے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ان ساتھیوں کے لیے جن کے اسباق چھوٹے ہوئے ہیں، تو ان کے ریویژن کرنے کی آسانی کے لیے بندے نے یہ ریکارڈنگ کروائی ہے، اور تاکہ ان کو آسانی سے کلاسز کیچ اپ کر سکیں، اور پھر وہ جو بیچ ہمارا آگے چل رہا ہے اس میں جوائن کر سکیں۔ اور اس کی ترتیب ہم نے یہ بنائی ہے کہ ہمارے جو کورس کا سلیبس ہے اس میں سے دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا،
اس کے 2 پارٹ اس کورس میں رکھے گئے ہیں. تو دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا، یہ وہ کتاب ہے جو ورلڈ وائڈ انسٹیٹیوشنز میں پڑھائی جا رہی ہے، اور ہمارے دینی مدارس کے سلیبس میں اس کے 3 پارٹ 3 سال میں پڑھائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ لاسٹ 15 ایئرز سے ہم اس کو پڑھانے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اس کورس کی اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب موجودہ زمانے کی مینٹالٹی اور موجودہ زمانے کا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے. اس کے اندر کوشچن اینڈ آنسرز بھی ہیں، فل ان دا بلانکس بھی ہیں، ٹرانسلیشن بھی ہے، اور پھر نیو ورڈز اینڈ اس کی ووکیبلری بھی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اسپیکنگ عربک زبان سیکھنے کے خواہش مند کے لیے عربی زبان کی اسپیکنگ کا بھی کورس ہے. تو یہ بہت ہی غیر معمولی اور بہت افیکٹو اور یوزفل سلیبس ہے بندے کی نظر میں. اور اس کے آتھر ہیں ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو عربی زبان کے ایکسپرٹ ہیں، جامعۃ الاسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے HOD رہے ہیں، اور ابھی ایٹ پریزنٹ قرآن پرنٹنگ کمپلیکس سعودی گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں. یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی ایفیکٹو اور بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ ایک کورس ہے، اور اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آج پہلا سبق ہم لوگ شروع کر رہے ہیں الدرس الاول. الدرس یعنی سبق، الاول فرسٹ، الدرس الاول the first lesson یعنی پہلا سبق. اس پہلے سبق میں ہم پریکٹس کریں گے ہاذا کی. ہاذا جیسا کہ عام طور پہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہاذا معنی یہ، دس، اور ہاذا اشارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کسی قریبی چیز کے اشارے کے لیے ہم ہاذا استعمال کرتے ہیں. تو ہاذا جو ہے میل کے لیے، سنگولر کے لیے، اور قریب کی چیز کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا بالکل بنیادی لفظ ہے ہاذا، کہ قریب کے اشارے کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہاذا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹیو ناؤن. ڈیمونسٹریٹیو ناؤن فار نیئر، قریب کے اشارے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور آج کے سبق میں یہ ووکیبلری اس کے ساتھ دی گئی ہے، اور بہت سی الفاظ وہ ہیں جو ہم کو آلریڈی معلوم ہے. الدرس الاول the first lesson، ہاذا دس، یہ. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. دس از اے ہاؤس. ہاذا مسجد، دس از مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا بابن، دس از اے ڈور، یہ دروازہ ہے. ہاذا کتاب، دس از اے بک، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، دس از اے پین، یہ قلم ہے. ہاذا مفتاح، دس از اے کی، یہ ایک کنجی ہے. ہاذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے. یہاں پر ٹیبل دیا ہوا ہے، اور موجودہ ماڈرن عربک میں مکتب آفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاذا مکتب، دس از اے ٹیبل، دس از اے ڈیسک. ہاذا سریر، دس از اے بیڈ. ہاذا کرسی، دس از اے چیئر، یہ ایک کرسی ہے. اور اس کتاب کا اپروچ یہ ہے کہ ہر نئے لفظ کے ساتھ اس کے زبر زیر پیش کو یہ لکھتے ہیں. جیسے مفتاح، میم پہ زیر ہے. اسی طریقے سے مکتب، میم پہ زبر ہے. تو یہ ساری چیزیں فرسٹ ٹائم جب یہ نیو ورڈز آئیں گے تو یہ اس کو زبر زیر پیش کے ساتھ لکھیں گے. اور دوسری چیز ہم یہاں غور کر رہے ہیں کہ ہاذا کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے اس کے اوپر 2 پیش کے ساتھ ہم پڑھیں.
अब हमारे यहाँ आमतौर पर जो हमारे साथी अरबी पढ़ते हैं तो हाजा बैत, हाजा मस्जिद, हाजा बाब, इस तरह नहीं। वो तो वक्फ का कायदा है, तो वो वक्फ का कायदा अभी इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं करेंगे। अभी जो आखिर में उसके जबर, उसके दो पेश के साथ हम पढ़ेंगे। और दूसरा काम ये हमको करना है कि वो वर्ड क्या एराब, वो वर्ड का हरकत, उस पर जबर जेर पेश किस तरह का है वो हमको जहन नशीन करना है। तो इसलिए हमको वोकैबुलरी भी याद करना है। पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 पे हाजा हमने पढ़ा है, तो हाजा से पहले माँ का इजाफा कर रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि माँ यानी व्हाट, क्या। तो हाजा से पहले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए जो है वो माँ का लफ्ज आता है सवाल के लिए, और ये सवालिया हाजा से प्रोसीड करेगा, हाजा से पहले होगा। जैसा कि इंग्लिश में खुद भी होता है कि व्हाट इज दिस, तो व्हाट पहले होता है और हाजा बाद में होता है। अलबत्ता उर्दू में क्या है ये ऐसे भी बोलते हैं, ये क्या है इस तरह भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी जबान में तो माँ जो होता है इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चनर होता है वो फर्स्ट आता है। तो अरबी जबान में भी इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पहले आए। माँ हादा, ये क्या है। तो यहाँ पर सवालात शुरू हो रहे हैं। माँ हादा, ये क्या है। हादा बैतुन, ये घर है। आ हादा बैतुन, क्या ये घर है। तो अब यहाँ एक दूसरा इंट्रोगेटिव आ गया, वो है आ माने इज दिस ए हाउस। नाम, यस। हादा बैतुन, यस दिस इज ए हाउस। मा हादा, व्हाट इज दिस। हादा कमीसुन, दिस इज ए शर्ट। ये एक कमीज है, ये एक शर्ट है, एक कुर्ता है। हादा सरीरुन, इज दिस ए बेड, क्या ये एक पलंग है। ला हादा कुर्सी, नहीं ये कुर्सी है। हादा मिफ्ताहुन, क्या ये कुंजी है। ला नहीं। हादा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। इज दिस ए की, नो दिस इज ए पेन। मा हादा, व्हाट इज दिस। हादा नजमुन, दिस इज ए स्टार। तो इस सफे पर पेज नंबर 6 पे हमने पढ़ा है कि हाजा से पहले इंट्रोगेटिव माँ आ रहा है, आ रहा है। और अफर्मेशन के लिए, अफर्मेशन यानी कंफर्मेशन के लिए नाम, नाम माने यस हाँ। और नेगेशन के लिए यानी नफी के लिए ला इस्तेमाल हो रहा है। तमरीनुन, तमरीनुन, तमरीनुन यानी मश्क, एक्सरसाइज। तो ये हर सबक में जो है मश्क और एक्सरसाइजेज होंगे, जिसके जरिए हमने जो पढ़ा है और जो पढ़ रहे हैं उसको परफेक्शन उसके अंदर आए। तमरीन एक्सरसाइज। तमरीन अव्वल, मा हादा। अब यहाँ पिक्चराइज पिक्चर दिया हुआ है। मा हादा, व्हाट इज दिस। हादा मिफ्ताहुन, दिस इज ए की। मा हादा, ये क्या है। हादा मिफ्ताहुन, ये कुंजी है। मा हादा, व्हाट इज दिस। हादा किताबुन, दिस इज ए बुक, ये क्या है। ये एक किताब है। मा हादा, व्हाट इज दिस। हादा कलमुन, दिस इज ए पेन, ये एक पेन है। मा हादा, हादा बाबुन, ये एक दरवाजा है। मा हादा, ये क्या है। हादा बैतुन, ये घर है। मा हादा, ये क्या है। हादा कुर्सीयुन, ये चेयर है। सफा नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पर तो इन सवालात और तस्वीर पिक्चर्स के जरिए से सवाल और जवाब में हमको बताया गया है। और तमरीन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, हादा बैतुन, इज दिस ए हाउस। ला हादा मस्जिदुन, क्या ये घर है। नहीं ये मस्जिद है। हादा मिफ्ताहुन, इज दिस ए की। ला हादा कलमुन, क्या ये एक कुंजी है। नहीं ये पेन है।
अहादा कमीसुन, इज दिस ए शर्ट? नाम, हादा कमीसुन, क्या ये शर्ट है? हाँ, ये शर्ट है। अहादा नजमुन, इज दिस ए स्टार? नाम, हादा नजमुन, क्या ये सितारा है? हाँ, ये सितारा है। तमरीनुन सालिस, यानी तीसरी तमरीन, तीसरी मशक। और जैसा कि अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि पहली मर्तबा जब अल्फाज ये बताएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो उसके हरकत यानी उस पर आने वाले ज़बर, ज़ेर और पेश को बताएंगे। लेकिन जब सेकंड टाइम यूज़ करेंगे तो फिर ये नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए कि वो वर्ड हमारा नोन हो गया, उसको हमने जान लिया है। तो नोन वर्ड को याद रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस मौके पे मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आपका एज ए स्टूडेंट आपका ये पार्ट होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यू हैव टू मेमोराइज द वोकैबुलरी. If you are familiar in vocabulary, then you can easily understand what is the grammar is going on. तो अगर आपने अल्फाज और मानी को अच्छे से याद कर लिया है और जहन नशीन कर लिया है तो फिर ऐसी सूरत में ग्रामर और कवाइद का जो पोर्शन होता है वो बहुत आसान हो जाएगा और वो पार्ट ऑफ द टीचर है। तो पार्ट ऑफ द टीचर जो है वो आपको कई मेथड से जो है उसको समझाया जाएगा, लेकिन अल्फाज को याद करना ये आपका काम हो। ठीक है। तो इसके बाद ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 है इसके अंदर यही कायदा हम लोग देख रहे हैं कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसको ये समझा रहे हैं। ठीक है। जैसे मीम पे मकतबुन पे जबर होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमने पीछे पढ़ लिया है। और इसी तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन में जेर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारा जो वोकैबुलरी का पार्ट है उसको हम तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। और एक्सरसाइज नंबर 3 की हेडिंग लगी हुई है और ये हेडिंग्स जो है यहाँ से शुरू होंगी। आप जितना हेडिंग को समझेंगे उतना आसान होगा। और अभी इब्तिदा में यानी मतलब स्टार्टिंग लेवल में हमारी जो बुक है उसके ऊपर हम एक्सरसाइज की हेडिंग के ऊपर जबर देर पेश लगा लेंगे ताकि आसानी से उसको हम पढ़ सकें, उसके माने हमको मालूम हो। इक़रा वक्तुब, इक़रा पढ़ो, वा एंड उक्तुब राइट, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। हादा मक्तबुन, ये टेबल है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा कलमुन, ये कलम है। हादा सरीरुन, ये बेड है। मा हादा, व्हाट इज दिस? हादा कुर्सीयुन, ये चेयर है, ये कुर्सी है। अहादा बैतुन, क्या ये घर है? ला, हादा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। मा हादा, ये क्या है? हादा मिफ्ताहुन, दिस इज ए की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 एक्सरसाइज दरसुल अव्वल के मुकम्मल हो गए हैं और बुनियादी बातें आपके सामने आ रही हैं। तो इसी तरीके से जैसा कि अभी हमने हादा से पहले मा वाट यूज किया था, तो एक और आ भी यूज किया हमने। आ माने इज दिस और व्हाट इज दिस, दोनों हो गए। अब तीसरा एक इंट्रोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं, वो है मन। मन माने हु, कौन। मन हादा, और ये भी हादा से पहले प्रोसीड करता है। इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनर जितने होते हैं वो हादा से पहले आएंगे। ठीक है। मन हादा, ये कौन है? मन हादा, ये कौन है? हादा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। हाँ सॉरी, हादा तबीबुन। मन हादा, ये कौन है? हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। मन हादा, ये कौन है? हादा वलदुन, ये एक लड़का है। वो इज दिस? दिस इज ए बॉय। मन हादा, ये कौन है? हादा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। तबीबुन डॉक्टर होता है, तालिबुन स्टूडेंट होता है। अहादा वलदुन, इज दिस ए बॉय? ला, नो। हादा रजुलुन, नो, दिस इज ए मैन। जैसे तबीबुन और तालिबुन सिमिलर हमको लग रहा है लेकिन फर्क है माने में।
Tabibun is a doctor, Talibun is a student, Waladun is a boy, Rajulun is a man. वलद माने हमारे उर्दू में जो वलद बेटा के माने में होता है वो नहीं, वलद एज ए बॉय। बेटे के लिए अरबी में दूसरा लफ्ज है, वो है इब्नुन। तो ये 9th पेज हमने मुकम्मल कर लिया है और 10th पेज पे हम लोग पढ़ेंगे। मा हादा, व्हाट इज दिस? हादा मस्जिदुन, दिस इज ए मस्जिद। मन हादा, हु इज दिस? हादा ताजिरुन, दिस इज ए मर्चेंट। हादा कल्बुन, दिस इज ए डॉग, ये एक कुत्ता है। हादा कल्बुन, इज दिस ए डॉग? ला। हादा qittun, नो, दिस इज ए कैट। हादा हिमारुन, दिस इज ए डोंकी, ये एक गधा है। हादा हिमारुन, इज दिस ए डोंकी? ला। हादा हिसानुन, नो, दिस इज ए हॉर्स, नहीं, ये एक घोड़ा है। वमा हादा, वा, यहाँ पर एक चीज का इजाफा हो गया, वा, वा मीन्स एंड व्हाट इज दिस, और ये क्या है? हादा जमलुन, दिस इज ए कैमल, ये एक ऊंट है। अल्हम्दुलिल्लाह 10वां पेज, पेज नंबर 10 कंप्लीट हुआ। मा हादा, व्हाट इज दिस? हादा दीकुन, दिस इज रूस्टर, ये क्या है? ये एक मुर्गा है। मन हादा, ये कौन है? हादा मुदर्रिसुन, दिस इज ए टीचर। हादा कमीसुन, इज दिस ए शर्ट, क्या ये कुर्ता है? ला, नहीं। हादा मिंदीलुन, नो, दिस इज ए हैंडकरचीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अद्दरसुल अव्वल ये पार्ट मुकम्मल हो गया और आगे है तमरीन, एक्सरसाइज। इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। और देखिएगा कि एक्सरसाइज में जब हम यहाँ जैसा कि 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इसकी जो तरतीब है, वो तरतीब से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकल ये 1 है, फिर उसके बाद यहाँ ये 2 है, ठीक है। तो आगे भी ये सारी चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो बहुत आसानी। मा हादा, व्हाट इज दिस? हादा कलमुन, दिस इज ए पेन, ये क्या है? हादा कलमुन, ये पेन है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। मन हादा, हु इज दिस? हादा तबीबुन, दिस इज ए डॉक्टर। हादा जमलुन, दिस इज ए कैमल, ये ऊंट है। हादा कल्बुन, इज दिस ए कैट? हादा कल्बुन, इज दिस ए डॉग? क्या ये कुत्ता है? ला। हादा qittun, नो, दिस इज ए कैट, क्या ये कुत्ता है? नहीं, ये बिलावड़ है। हादा दीकुन, इज दिस ए रोस्टर? नाम, यस, क्या ये मुर्गा है? हाँ। हादा हिस्वानुन, क्या ये घोड़ा है? ला। हादा हिमारुन, नो, दिस इज ए डोंकी, नहीं, ये गधा है। हादा मिंदीलुन, ये एक हैंडकरचीफ है। हादा वलदुन, इज दिस ए बॉय? नाम, यस, क्या ये लड़का है? हाँ। मन हादा, हु इज दिस? हादा रजुलुन, दिस इज ए मैन, एक आदमी। एक आपके जहन में सवाल होगा कि अभी हम पहले सबक में पढ़ने जा रहे हैं, तो इन चीजों के अंदर ये कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, गधा, ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो याद रखिए कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में बात ये होती है कि आपका जो नॉन नॉलेज होता है और जिसको आप डेली लाइफ में जिसको आप देखते हैं, जिसका आपके सामने तजुर्बा होता है और जो चीजें हैं, तो उनको यूज किया जाए। कि अननोन चीजों को आपको लेकर पढ़ाया जाए तो आदमी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो आदमी की जो रूटीन लाइफ में है कि इंसान के साथ जो चीजें होती हैं और जिसके साथ एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, जैसे भी हमने पढ़ा है कि कुर्ता है, सितारे हैं, ये वो चीजें हैं जो
जो इंसान की डेली लाइफ में जो बहुत कॉमन है उनको सामने रखकर यूज किया जाए ताकि आदमी इजीली ग्रास्प कर सके। दूसरी चीज खास तौर पे हमारे साथी यहाँ गौर से देखें आप कि यहाँ पर ये मुदर्रिस के रा के ऊपर जो है हमको जो है लग रहा है कि जबर है। थोड़ा सा इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि आपको और इजीली बात समझ में आए। यहाँ देख रहे हैं आप कि मुदर्रिसुन के ऊपर हमको लग रहा है कि ये जबर है, ठीक है। मुदर्रिसुन के ऊपर ऐसा लग रहा है कि ये जबर है, लेकिन अभी ये जो कंप्यूटराइज टाइपिंग हो गई है उसकी वजह से ये चेंजेस हो गए। क्या है कि पहले हम लोग जेर जो है वो लेटर के नीचे लगाते थे, लेकिन कंप्यूटर की टाइपिंग की वजह से, और वो भी कब, जब यहाँ उसके साथ तशदीद हो, यानी ये जो तशदीद का ये सिंबल है कि जब ये तशदीद के साथ आए तो ये लेटर के नीचे के बजाय तशदीद के नीचे आ जाता है। तो तशदीद के नीचे जब आ जाए तो वो जेर होगा। तो ये कंप्यूटर टाइपिंग और एडवांस आप कह लीजिए कि मॉडर्न टाइपिंग के जो चेंजेस आए हैं उसकी एक वजह ये भी है। और दूसरी चीज यहाँ पर समझा रहे हैं कि दो पेश हमने पढ़े हैं, तो दो पेश यहाँ तो लिखे हुए हैं, तो ये दो पेश तो हम समझते हैं, लेकिन इस तरीके से भी यह होता है, यानी एक पेश और दूसरा उसके ऊपर छोटा सा ऐसा कर्व आप ले लें, तो ये दो पेश, ये भी दो पेश होते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह दरसुल अव्वल हमने मुकम्मल किया है, और इसके अंदर जैसा कि आपने ऑब्जर्व भी किया है कि इसके अंदर बहुत सारे नए अल्फाज हमने पढ़े हैं। तो इसके लिए हम लोग रेफर करेंगे तो अरबिक वोकैबुलरी बैंक। तो इसके लिए आप वोकैबुलरी जो इसके लिए बुक है, इसकी जो गाइड है वोकैबुलरी की, वो हम इसको रेफर करेंगे। तो इसके अंदर लेसन वाइज जो है वो अरबिक वोकैबुलरी बैंक है, मदीना बुक 1 चैप्टर 1 to 23। तो इसकी जो है लेसन वाइज इसके अंदर अल्फाज और मानी दिए हुए हैं। ये फर्स्ट लेसन की वोकैबुलरी है। हाजा दिस फॉर मेल, बैतुन हाउस, मस्जिदुन मस्जिद, बाबुन डोर, किताबुन बुक, कलमुन पेन, मिफ्ताहुन की, मकतबुन डेस्क, सरीरुन बेड, कुर्सियुन चेयर, मा हाजा व्हाट इज दिस, अहाजा इज दिस, नाम यस, कमीസുन शर्ट, ला नो, मन हु। और ये इसका लेसन 1 की फर्स्ट टेबल हो गया। सेकंड टेबल है मन हादा, वो इज दिस, तबीबुन डॉक्टर, वलदुन बॉय, तालिबुन स्टूडेंट, रजुलुन मैन, ताजिरुन मर्चेंट, कल्बुन डॉग, qittun कैट, हिमारुन डोंकी, हिसानुन हॉर्स, वा एंड, जमलुन कैमल, दीकुन रोस्टर, मुदर्रिसुन टीचर, मिंदीलुन हैंडकरचीफ, नजमुन स्टार। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दरसुल अव्वल आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि मौला ताला हम सबको अरबी ज़बान जो कुरान की ज़बान है, हदीस की ज़बान है, और हम अपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी उसको बना सकते हैं। मौला ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमा ले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।